So I quickly revise this last topic, okay, Poisson distribution, and after that there is only one topic, normal distribution, that is the last part under this third unit, okay. Then we have to start the next unit, unit number 4, okay. We already covered the first distribution, which is binomial distribution, and now second distribution is Poisson distribution, okay. What are the criteria for this Poisson distribution? Okay, when your probability is very small and the number of trials are very large, generally in that case we prefer the Poisson distribution, and the probability of getting R success is defined as P of R is equal to e raised to minus z, z raised to r upon r factorial, okay. So I think we already covered all the examples in last lecture itself, so I'm not going to repeat this part, okay. And also the recording is available to those who want to revise this topic. They can revise directly from the recording, okay, because this topic is very important as far as your exam is concerned, okay. Now only one example is remaining, okay, so I will quickly cover this example and then we start the last distribution. So the last example on this Poisson distribution, so example is like this: the accidents per shift in a factory is are given by the table. So the accidents x per shift and the frequency, okay, so this is the frequency distribution data, okay. So when x is 0, so total frequency is 142. When x is 1, total frequency is 158, 267, 3, 27, 4, 5 and 5, 1, okay. So this first row actually gives you the accident, number of accidents, the accidents per shift. So 0 accident, 1 accident, 2 accident, 3 accident, 4 accident, 5 accident, like this, okay. And these are the frequencies of this number, okay. Fit a Poisson distribution to above table and calculate the theoretical frequencies, okay. So as example, rarely ही ऐसे examples आते हैं, but we can't take a risk in that case also. So here I want to introduce the new definition, which is the theoretical frequencies, okay. These are the given frequencies and from this we have to calculate the theoretical frequencies. So later on I will define what is meant by theoretical frequencies, and उन्होंने ये भी दिया कि आपको यहाँ पे Poisson distribution का use करना है. So we have to use the Poisson distribution to calculate this theoretical frequencies. So in solution, first we will calculate the mean, because as far as Poisson distribution is concerned, that is the probability of getting R success is equal to what? E raised to minus z, z raised to r and upon r factorial. This is the definition of Poisson distribution, and where the z is actually mean. So first here I calculate mean of this given distribution that we already learned in statistics, okay. So what is the mean for this given data? Xi into fi, 0 into this, 1 into 158, 2 into this, 3 into this, 4 into this, 5 into this, okay, divided by total number of frequencies. So if I calculate this, okay, so the mean for this given data is actually 0.9950, correct. And now and the total frequencies, okay, so if you add all these frequencies, 142, 158, 67, 27, 5 and 1, so addition of all these frequencies is actually 400, okay. We need all these values while calculating the probability, okay, using the Poisson distribution. तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, गिवन जो भी डाटा था वहाँ से मैंने मीन कैलकुलेट किया है, ओके. क्यों कैलकुलेट किया था? क्योंकि जो अगर आपको Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है, सो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो z आता है, ये z एक्चुअली आपका मीन होता है, ठीक है. और नेक्स्ट इज व्हाट द, इफ यू कंसिडर द एडिशन ऑफ ऑल दिस फ्रीक्वेंसी और द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो दैट काउंट इज 400, okay. You will need this total frequencies while calculating the theoretical frequencies, okay. So now we are ready with the Poisson distribution. So that formula is P of R equal to e raised to minus z, z raised to r upon r factorial, correct. And now here I will define the theoretical frequencies, okay, or the expected frequencies. So the theoretical frequencies or the expected frequencies is equal to the total frequencies, that count is 400, okay, multiplied by the probability, each probability. So this is the definition of theoretical frequencies, okay. तो ये डायरेक्टली एक आपको मैं टेबल ही देने वाला हूँ और उस टेबल में ये सारे theoretical frequencies कैलकुलेट उस सारे theoretical frequencies हम कैलकुलेट करने वाले हैं.
So this is the given information. We have given the x number of accidents per shift, okay, 0 shift, 1 shift, second, third, fourth, fifth, and the corresponding frequency is 142, 158, 67, 27, 5 and 1. Okay, so that experiment doesn't matter. Okay, we have to calculate, and then we have to calculate the theoretical frequencies. So whatever the given frequencies are there, those frequencies are called as observed frequencies. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एंड हियर वी हैव टू कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, ओके, करस्पॉन्डिंग टू ईच डाटा. ठीक है, so how you define the theoretical frequency? That is equal to total frequency multiplied by its probability. So total frequency is 400. If you add all this frequency, okay, this that count is 400 multiplied by probability at r is equal to 0, number of accidents per or probability of x is equal to 0. Okay, I will fix notation as it is. यहाँ पे r की जगह पे अगर आप x लेते हो तो आपको ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. Okay, so to calculate probability of this 0 accident, okay, that is probability of r equal to 0. So फॉर्मूला आपको पता है, e raised to minus z, z की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की थी लास्ट इसमें, मीन जो आपका आ रहा था, e raised to minus z, z raised to r, r is 0 upon 0 factorial, and that calculation gives you 147.88. बट ये काउंट है, आपको मैंने पहले क्लियर किया कि फ्रीक्वेंसी ये काउंट होता है. सो 147.88 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय 148. सो फॉर x इज इक्वल टू 0, ओके, for x is equal to 0, your observed frequency is 142, which is given, and the theoretical frequency which we calculated here from the probability, that theoretical frequency is 148. तो ये काउंट नियर बाई रहता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफर नहीं होगा. नाउ calculate frequency for x is equal to 1. So formula is 400 multiplied by its probability. So 400 multiplied by probability when r is equal to 1, that is e raised to minus z, z raised to 1 upon 1 factorial. If I calculate this, you will get 147.14, that count is 147. And similarly, if I calculate for probability when for r is equal to 2, probability for r equal to 3, probability for r equal to 4, and probability for r is equal to 5, you will get all your theoretical frequencies. So 148, 147, 73, 24, 6 and 1, these are your final theoretical frequencies. तो यहाँ पे बस इस टेबल के फॉर्म में आपको इसका आंसर देना है. That is all about this last question. Okay, so only in last question here we actually calculate the theoretical frequencies from the given frequencies or from the observed frequency. Okay, so that is all about Poisson distribution. जितने भी पॉसिबल एग्जांपल्स थे, सारे एग्जांपल्स मैंने स्लाइड में ही कवर किए. इसके बाहर आपको कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है या कोई अदर होमवर्क भी आपके लिए नहीं होगा. जस्ट स्टिक विद दिस एग्जांपल्स. इन एग्जांपल से आप कोई भी Poisson distribution का एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, एंड नाउ here come the last. Okay, I think there is one more example, so I quickly okay, so I will quickly take this example. Question number 6. In a Poisson distribution, if P of r, probability for r is equal to 1, is equal to 2 times probability for r is equal to 2. That is given. Okay, so this is the given equation. We have given probability for r is equal to 1 is equal to 2 times the probability for r is equal to 2, and from this we have to calculate probability for r equal to 3. So here we don't know the given experiment. Okay, आपको यहाँ पे कुछ भी information नहीं है कि मीन क्या होगा. Okay, and so on. तो आपको using this P of r equal to 1 and P of r equal to 1 equal to 2 times P of r equal to 2. Okay, we need to calculate that z. Correct? So here in solution, what is given? We have given, so okay, we have to use the Poisson distribution. That formula is e raised to minus z, z raised to r upon r factorial. And what is given? Probability for r equal to 1 is exactly equal to 2 times the probability for r is equal to 2. Formula में सारे values put करो. For r equal to 1, you will get e raised to minus z, z raised to 1 upon 1 factorial. And for r equal to 2, you will get e raised to minus z, z raised to 2 upon 2 factorial. Okay, now here you can cancel this e raised to z, e raised to minus z, because it is a non-zero number. Correct? And now if you rearrange these terms, you will get z equal to z square. This 2 cancel with this 2. Correct? And now this can be written as z minus z square equal to 1. This can be written as z into 1 minus z equal to 0. And that implies z equal to 1. Okay, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? Why I skip this z equal to 0? Because if I consider z equal to 0, there is nothing to solve, because for mean to be 0, okay, your probability becomes 0. Okay, तो ये obvious
कंसिडरेशन आपको लेना होगा दैट योर जेड मस्ट बी नॉन जीरो, बिकॉज किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर आपका मिनी जीरो आता है तो उसमें क्या कैलकुलेट करोगे आप? Okay, so there is nothing to solve if I take z to be 0. That's why that z must be non-zero. That is the reason for z to be non-zero, because in that case there is nothing to solve. For example, अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो और आपको पहले ही पता है कि जीरो ये तो सोल्यूशन होता ही है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फॉर एग्जांपल या फॉर पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगर आप डायरेक्टली जीरो ही लेते हो तो फिर उसमें सॉल्व करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं आपके पास. सो टू कैलकुलेट दैट सोल्यूशन वी नीड टू कंसिडर दैट y टू बी नॉन जीरो, तब जाके आपको वो सोल्यूशन मिल जाएगा, इन जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, तो वही एक रीजन है यहाँ पे. z इक्वल टू जीरो के केस में देयर इज नथिंग टू सॉल्व, दैट्स व्हाई आई कंसिडर हियर z इक्वल टू 1. एंड नाउ I know that z equal to 1, so here you will get that mean. Okay, therefore probability for r equal to 3 is e raised to minus z, z raised to 3 upon 3 factorial. Just put z equal to 1 and that gives you 0.0613. ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स आपको आ सकते हैं और इसका वेटेज ज़्यादा नहीं होता, इसलिए जो इनिशियल या जो लास्ट लेक्चर के जो एग्जाम्पल्स थे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने कवर किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दिस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न. ठीक है, ये 2-3 मार्क्स का इसका एक्चुअल वेटेज है, बट ऐसा भी नहीं कि आपको एग्जाम में नहीं आएगा, आपको एग्जाम में इतने ट्रिवियल क्वेश्चन भी आ सकते हैं. ओके, एंड नाउ we'll start the last topic from this third unit which is normal distribution. Okay, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें अगर आपको ये मतलब कंसेप्ट नहीं समझ में आती है तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए ब्लैंक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब दिस टॉपिक इज मोर डिपेंड ऑन योर मतलब हाउ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, क्योंकि ये टोटली न्यू टॉपिक है आपके लिए जो शायद आपको प्रीवियसली कभी नहीं था. इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप कहीं पे लिंक, क्योंकि आज और कल के लेक्चर में हमें ये टॉपिक फिनिश करना है, तो अगर कहीं पे आपके लिंक छूट जाती है तो ये टॉपिक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. ओके, एटलीस्ट यू कैन मतलब जस्ट बाय रीडिंग यू कैन अंडरस्टैंड बायनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए. इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन दिस लेक्चर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें टीचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ जाती है तब जाके आप इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? अभी तक आप प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट कर रहे थे वो एक फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, मतलब जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल आता है जनरली, उस केस में आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हो, जिसमें मतलब एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स रिपीट होता है, 2000 टाइम्स रिपीट होता है, जनरली उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हो. सो बायनोमियल एंड पॉइजन उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था और वहाँ से आपने प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन किया था. बट ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करने वाले हो वो प्रोबेबिलिटी में लिंक करने वाला हो एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले, वो जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी वो प्रोबेबिलिटी में डायरेक्टली लिंक करने वाला हो एरिया अंडर दी कर्व. तो आपका क्वेश्चन होगा कि आपको पहले ही पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, करेक्ट? ओके, क्योंकि जो भी आपका आंसर आने वाला है प्रोबेबिलिटी में उसका वो जो आंसर होगा वो 0 and 1 में ही होगा, बिकॉज यू नो दैट P ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1, करेक्ट? तो यहाँ पे भी जो आप एरिया कंसिडर कर रहे हो, ओके, यहाँ पे भी आप जो एरिया कंसिडर करें उसकी वैल्यू भी इस रेंज में ही आएगी. ओके, लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड सॉरी ऑल दिस थिंग. ओके, या सिंपली अभी के लिए आप इतना याद रखो, यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले, दैट प्रोबेबिलिटी आई हैव टू लिंक विद द एरिया अंडर द कर्व. ओके, दैट प्रोबेबिलिटी आई हैव टू लिंक विद एरिया अंडर द कर्व. दैट इज माय स्टेटमेंट. ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे करना है वही आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन सा एरिया अगर आप कंसिडर करते हो आपको डायरेक्टली उस एरिया से प्रोबेबिलिटी मिलती है. ठीक है, तो वो एरिया आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलने वाला, अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज वो कुछ भी क्लिक नहीं होगा कि कैसे सारा कैलकुलेशन हो रहा है. ओके, सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट वन बाय वन. सो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सारे ये जनरलाइजेशन ही है, बायनोमियल ही मेन था, ये आगे सारे जनरलाइजेशन. सो दिस इज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज वेरी लार्ज. ये भी पॉइजन में कंडीशन थी. ओके, एंड नाइदर P and Q आर वेरी स्मॉल. ओके, बट पॉइजन में कंडीशन क्या थी? P and Q आर वेरी स्मॉल. ओके, बट यहाँ पे बस आपको n लार्ज चाहिए. ओके, नॉट दिस P and Q. ओके, नाइदर P and नॉर Q टू बी वेरी स्मॉल. So these are the criteria for this normal distribution. But ये आइडेंटिफिकेशन का पार्ट आपको
जनरली एग्जाम में नहीं आता. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन होगा, यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. जनरली बाइनोमियल के क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता. ओके, बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो बाइनोमियल का होगा, ऐसे शायद आप गेस कर सकते हो. बट स्टिल आई हैव गिवन ऑल द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई विच डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल टू सॉल्व द गिवन एग्जाम्पल. ओके, जैसे कि यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको लार्ज चाहिए, वेरी लार्ज. ओके, सो दैट काउंट मे बी क्रॉस दी 1000 लाइक दिस. ठीक है, एंड दी नाइदर पी एंड क्यू आर very small. Okay, this is the criteria for normal distribution. But still, okay, given example, there are some examples which can be solved by using binomial, Poisson and normal. क्योंकि ये जो very large, very small, ये criteria person to person different होगा ना. Okay, from my point of view, very large का मतलब क्या, 2000 से ज़्यादा चाहिए. बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी लार्ज का मीनिंग होगा कि 100 से ज़्यादा चाहिए. तो इसलिए ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आप कोई भी गिवन एग्जांपल आप नॉर्मल से भी कर सकते हो, पॉइजन से भी कर सकते हो, बाइनोमियल से भी कर सकते हो. आपको बस ये देखना है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन से आपको मोर एक्यूरेट आंसर मिलता है. ठीक है, तो जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके, बाय विच मेथड विल गेट द मोर एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी ऑफ any given random variable. Just to answer this question, here we differentiate all these three distribution. मतलब बाइनोमियल कौन से केस में चाहिए, पॉइजन कौन से केस में चाहिए, नॉर्मल कौन से केस में चाहिए. ठीक है, बट ऐसा ही नहीं कि मतलब इसी कंडीशन में आपको अप्लाई करना है. ओके, अगर नहीं मैच हो रही है आपकी कंडीशन, स्टिल इन दैट केस ऑल्सो यू कैन ट्राई टू सॉल्व दैट एग्जांपल बाय यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन का पार्ट था, जिस पे आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो वो एग्जाम्पल में मेंशन होगा. ओके, क्योंकि इट्स नॉट दैट मच इजी टू आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन एग्जाम्पल. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन होता है कि कौन से मेथड से आपको करना है. चलो, एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैव बीन बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एक्चुअली ये एक फंक्शन होता है. जैसे आपके पास पॉइजन का फॉर्मूला है, बाइनोमियल का एक फॉर्मूला है, वैसे ही यहाँ पे एक आपके पास फॉर्मूला आने वाला है. बट वो फॉर्मूला एक्चुअली क्या होगा, एक फंक्शन आने वाला है. ठीक है, सो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिफाइंड दैट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स is equal to 1 upon sigma. Sigma is the standard deviation. Okay, 1 upon sigma multiplied by under root of 2 pi multiplied by e raised to minus in bracket x minus mu whole square upon 2 sigma square. ठीक है, तो ये मुझे भी पता है कि ये फॉर्मूला देखने में भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि ये एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो कहीं पे भी आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इसको मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूँ, या ये जो फंक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको मैं ग्राफ में लेने वाला हूँ. मुझे इसका ग्राफ चाहिए. आई डोंट वांट दिस फंक्शन, आई जस्ट वांट द ग्राफ ऑफ दिस गिवन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो हियर दिस सिग्मा इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड म्यू इज एक्चुअली मीन. तो यहाँ पे जो म्यू आ रहा है वो मीन है, और जो आपका सिग्मा है दिस इज एक्चुअली अ स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, बट आपको मैंने पहले ही क्लियर किया था कि यहाँ पे आपका टारगेट क्या है. अंडर दिस टॉपिक एक्चुअली आई हैव टू अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी बाय द एरिया अंडर द कर्व. ये मेरा टारगेट है. मुझे एरिया का यूज करके, एरिया अंडर द कर्व का यूज करके मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो मेरे लिए मेरा आंसर क्या होगा, व्हाट इज द एरिया अंडर दैट कर्व. तो प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा अंडर दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अंडर दैट कर्व, एंड दैट कर्व इज एक्चुअली कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम कर्व में ले रहा हूँ और उस रैंडम कर्व के नीचे का जो एरिया आ रहा है वो मैं प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो कर्व हम प्लॉट करने वाले, दैट कर्व यू विल गेट इट फ्रॉम दिस रिजल्ट. ठीक है, सो हियर नाउ आई विल कंसिडर द ग्राफ ऑफ दिस कर्व. सो दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ठीक है, नॉर्मल मतलब वर्ड में सब कुछ है. जो राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूट, जैसे राइट साइड में कर्व का नेचर है, सेम नेचर आपको लेफ्ट साइड में मिलता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया आ रहा है, दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस एरिया. दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो दिस कर्व इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एक्स इज इक्वल टू म्यू. तो यहाँ पे जो जहाँ पे हाई पिक आपको मिल रही है ना, ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, म्यू. म्यू इज द मीन. तो मीन पे आपको हाई पिक मिलता है. ये सारी चीजें आप याद रखो क्योंकि इनका यूज होने वाला है. ओके, हर एक स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट में कर रहा हूँ, हर एक स्टेटमेंट का आगे जाकर यूज होगा. तो हाई पिक आपको कहाँ पे मिलता है, फॉर एक्स इज इक्वल टू म्यू. ओके, सो दिस इज योर रेगुलर टू डायमेंशन प्लेन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और कर्व का नेचर ऐसा कुछ आ रहा है. ठीक है, हाँ, and this curve is called as, this curve is actually p of x, so which is normally distributed about x is equal to mu. Sure. Okay.
आपको इतना एग्जैक्टली प्लॉट नहीं करना है कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट्स क्या है, ओके बस रफली नेचर याद रखो, ओके तो नेचर आपको पता है, जब भी आपको नॉर्मल कर्व ड्रॉ करनी है इट्स लाइक दिस, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का एरिया सेम दिखाई देना चाहिए, ओके so now I will I'm going to explain how you can find a probability from this curve या from the area under this curve। मुझे इसके नीचे जो एरिया आ रहा है ना इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है हर एक एरिया बेसिकली प्रोबेबिलिटी देने वाला है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स, ठीक है। सो फॉर दैट मतलब ये जो गिवन कर्व है, इफ आई इंटीग्रेट दिस, सपोज डिनोट दिस कर्व बाय से y, या ये जो भी गिवन फंक्शन इसको आप y से डिनोट करो, एंड इफ आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके तो मतलब इसका मतलब सिंपली मीनिंग क्या है, व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। इस क्वेश्चन का मीनिंग ही क्या होता है, व्हाट इज द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व। सो द टोटल एरिया अंडर दिस कर्व इज 1, इसलिए ये कर्व स्पेसिफिक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आती है 1, ओके तो इसलिए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड द हाईएस्ट एरिया, द लार्जेस्ट एरिया इज आल्सो 1, दैट्स व्हाई दिस कर्व इज सो स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये जो टोटल एरिया आता है ये 1, तो ऑब्वियसली अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो ये जो लेफ्ट साइड का पार्ट होगा ये 0.5 एरिया का होगा, और जो राइट साइड का पार्ट है ये भी 0.5 एरिया का पार्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। नाउ जस्ट फोकस ऑन द एरिया अंडर दैट कर्व, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है बस उस पर फोकस करो, ओके। अभी आपका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ यू रिलेट अ प्रोबेबिलिटी विद द एरिया, दैट इज द मेन क्वेश्चन, ओके जिसका आंसर मुझे स्टार्टिंग से करना था। हाउ यू रिलेट अ प्रोबेबिलिटी विद द एरिया। So here comes the second remark. That means what our question is what? Here I have to find a probability of x. या आप इसमें इसको r में भी लिख सकते हो। So here I have to calculate probability of x. मुझे x की probability calculate करनी है which lies between x1 and x2. या simply अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन लेता हूँ, find a probability of x which lies between 0.2 and 0.4. ये आपने किया था, ओके बाइनोमियल में, पॉइजन में, या जनरली अगर मैं 0.2 की जगह पे 2 लेता हूँ और इसकी जगह पे 5 लेता हूँ, तो ये आपने ऑलरेडी किया था, ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विच लाइज बिटवीन 2 एंड 5। इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी विच लाइज बिटवीन 2 एंड 5, तो क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली लेस देन है, मतलब 3 देन 4, दैट्स इट, दिस इज द आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी विच लाइज बिटवीन 2 एंड 5, ओके 2 के आगे आता है 3 के बाद 4 और 5 आपको नहीं लेना है क्योंकि ये स्ट्रिक्ट साइन है, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर फॉर प्रोबेबिलिटी विच लाइज बिटवीन 2 एंड 5, दैट आंसर इज प्रोबेबिलिटी फॉर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 4, और ये फिर आपने आगे पॉइजन से किया था और बाइनोमियल से किया था। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला, यहाँ पे इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर क्या होगा, वी हैव टू रिलेट दिस प्रोबेबिलिटी विद द एरिया, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, ओके आपको बस करना क्या है, x इक्वल टू x1 एक पॉइंट कंसिडर करो, ठीक है, x इक्वल टू x1, आप जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम, x इक्वल टू x1 एक पॉइंट कंसिडर करो एंड x इक्वल टू x2 एक पॉइंट कंसिडर करो, ठीक है। तो द एरिया under the curve from x is equal to x1 and x equal to x2, that area is your required probability। अब देखो कितना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, x1 और x2 के अंदर जो भी एरिया आपको मिल रहा है, ओके area under this curve from x is equal to x1 to x is equal to x2, whatever the area here you will get, that area actually gives you probability of x which lies between x1 and x2। see this is very very strong result as far as probability is concerned, क्योंकि मैं probability relate कर रहा हूँ डायरेक्टली एरिया से, ओके। अभी आपका एक क्वेश्चन होगा कि हाउ यू कैलकुलेट दिस एरिया, ये सारे एरिया आपको गिवन ही रहते हैं, जैसे एक लॉगरिथम का टेबल होता है ना, वैसे एक्चुअली इसका एरिया कैलकुलेट करने का एक टेबल होता है, ओके। तो बस वो टेबल रीडिंग का पार्ट आपको अभी सिलेबस में नहीं है, ओके अदरवाइज फिर उसके ऊपर एक लेक्चर आ जाता सेपरेट। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे रिक्वायर्स या जो भी रिक्वायर्ड एरिया आपको चाहिए ना, वो सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होगी, ठीक है। तो आपका अभी आपका एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो एरिया, सपोज यहाँ पे जो मुझे एरिया दिखाई दे रहा है, ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो कहीं भी आपको एरिया कैलकुलेट नहीं करना है, सारे जो रिक्वायर्ड एरियाज है एग्जाम्पल में वो सारे एरियाज आपको एग्जाम्पल में गिवन रहेंगे, तो इसका जो भी एरिया होगा ना वो एग्जाम्पल में गिवन होगा। ये एक्चुअली कैलकुलेट क्या है, जैसे लॉगरिथम का एक टेबल होता है ना, वैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक टेबल है, जब भी कभी आप बुक रीड करते हो ना आपको वो टेबल दिखाई देगा, ओके। सो फ्रॉम दैट टेबल यू कैन फाइंड ऑल दिस एरियाज, मतलब इस पॉइंट से सारे पॉइंट्स में जितने भी पॉसिबल एरियाज है सारे एरियाज आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ हियर आई आंसर द क्वेश्चन दैट हाउ आई रिलेट द प्रोबेबिलिटी विद द एरिया, ओके। तो अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था ना वो इंटरवल में था, मतलब x1 to x2 के रेंज में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ आई कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली x is equal to x1,
और सिंपली हाउ आई कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 या पी एट x1, सिंगल पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, तो अगर आपको सिंगल पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो उस केस में एरिया आपको कहाँ तक लेना होगा। अब ये सिंगल लाइन, दिस इज नॉट योर रिक्वायर्ड एरिया, तो एरिया आपको कहाँ से लेना है, x इक्वल टू म्यू टू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये x1 है, तो आपको एरिया कहाँ से लेना है, x इक्वल टू म्यू टू एक्स इज इक्वल टू x1, मतलब जिसमें सिंगल पॉइंट गिवन है उस केस में जो आपका अदर पॉइंट होगा वो हमेशा मीन का पॉइंट आता है, हमेशा याद रखो ये पार्ट, ठीक है। सो फ्रॉम म्यू टू x1 जो भी एरिया आपको मिलता है, सो म्यू टू x1 जो भी एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी एट x1, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम म्यू टू दिस x2 whatever area you will get mu to x2 ये total area, whatever area you will get that gives you probability for x2। चलो दो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए। पहला रिजल्ट था x1 एंड x2 के रेंज में अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो उन दोनों रेंज में जो भी एरिया आता है वो आपकी दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। बट अगर सिंगल पॉइंट के लिए अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे आपको मीन से जाना होगा, फ्रॉम मीन टू दैट पॉइंट, हमेशा याद रखो फ्रॉम हाई पिक, ये जल्दी याद हो जाएगा, हाई पिक टू वट एवर दैट पॉइंट इज देयर, ठीक है। आई विल इरेज ऑल दिस थिंग्स सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। मतलब अगर कहीं पे मेरा यहाँ पे x4 आ रहा है, ओके, तो x4 का एरिया क्या होगा, x4 से लेकर मीन तक जितना भी पार्ट कवर हो रहा है, ओके, या आधा पार्ट है, जस्ट फोकस ऑन दिस हाफ पार्ट, लेफ्ट साइड में नहीं जाना है। सो x4 से लेकर ये पूरा एरिया, ओके, दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी फॉर x4। या सिंपली सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे डिफाइन की है, इट इज एक्चुअली एरिया फ्रॉम म्यू टू दैट पॉइंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी xi इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फ्रॉम म्यू टू दैट xi। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है क्योंकि इस लैंग्वेज में आपको एरिया गिवन होता है क्वेश्चन में। चलो वेलकम टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ओके, बट हमें यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, ओके, मतलब ये जो प्रीवियस अप्रोच था एरिया का, ओके, दैट इज ओके, ठीक है, बस एरिया कैलकुलेट करो, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके। बट हम क्या करने वाले, अभी प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व आती है ना, ये दिस डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट म्यू, मतलब पहले आपको यहाँ पे चाहिए मीन, ठीक है, और मीन कैलकुलेट करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपका कर्व का नेचर क्या है, ओके। बट इट्स नॉट द इजी टास्क टू कैलकुलेट मीन इन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल, ओके। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो अभी तक जो भी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओके, उस केस में आपको ये डायग्राम चाहिए, बट डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए आपको x इक्वल टू म्यू का पॉइंट चाहिए ना। आपको अगर समझ में आता है कि म्यू इक्वल टू 4 है तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो कि चलो एक 4 x इक्वल टू 4 पे आ जा और इसके अराउंड एक मुझे नॉर्मल कर्व कंसिडर करनी है, हो गया। तो ये कुछ तो नेचर होगा, मुझे इतना प्रॉपर नहीं चाहिए बट एटलीस्ट एक तो पॉइंट चाहिए ना, हाई पिक का तो पॉइंट आपको पता होना चाहिए ना कि का, तो फिर आपको एक यू कैन ड्रॉ अ टेंटेटिव नेचर ऑफ द गिवन नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो ये जो अप्रोच था, इस अप्रोच से अगर आप जाते हो तो आपको म्यू कैलकुलेट करना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, तब जाके सारे एरियाज आपको क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ओके, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो गिवन फंक्शन है इसको मॉडिफाई करने वाला हूँ। मॉडिफाई से क्या होता है कि ये जो चीज़ें कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो चेंज नहीं होगा, ओके। मैं बस क्या करने वाला हूँ, x वेरिएबल को z वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। So using transformation, that is I have to transform now x variable to z variable, okay। क्यों ये करना आपको समझ में आ जाएगा, okay। And to do that, okay, ठीक है, तो अभी वो सब कुछ कैसे करना है आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। So here you already know that what is the probability for x1, ओके, ये आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 आपकी क्या है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फ्रॉम म्यू टू x1 और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू x इज इक्वल टू x1। ये छोड़ दो, ये बस एक फंक्शन है, ओके, क्योंकि आपको पता है, तो आपको बस करना क्या है, गिवन जो फंक्शन है, एरिया आपको पता है, एरिया मतलब y फंक्शन गिवन है तो y फंक्शन का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, उसको इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे फंक्शन आपको पता था, ये ऑलरेडी दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर कर्व, ये जो एक कर्व थी इसका इक्वेशन क्या था, ये 1/सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई रेज़ टू माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो फ्रॉम म्यू टू x1, ओके, ओके, देन यू विल गेट द एरिया अंडर दिस कर्व,
आपको मैंने बोला कि ये जनरली गिवन होता है, यहाँ पे बस मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसे लिया है। अभी मुझे करना क्या है, आई हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस एक्स वेरिएबल टू जेड वेरिएबल, ठीक है। अभी देखो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू x1 इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इक्वल टू म्यू टू x इज इक्वल टू x1, ये जो भी एरिया आता है, ओके। ये एरिया एक्चुअली क्या है, ये एरिया एक्चुअली क्या है, ये जो इंटीग्रेशन मैंने लिया है वो कैसे, क्योंकि ये जो फंक्शन है, ओके, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई रेज़ टू माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअली ये फंक्शन है, ये जो रेड कलर से जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, दैट इज दिस फंक्शन। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, मतलब इसको अगर मैं y लेता हूँ, अगर मैं y को इंटीग्रेट करता हूँ फ्रॉम म्यू टू x1, ओके, तो वहाँ से मुझे ये एरिया मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, बट y फंक्शन आपका क्या है, ये 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट ऑफ 2 पाई रेज़ टू माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, इसलिए ये जो एरिया आता है, ये एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम म्यू टू x1 ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सो देयरफॉर p ऑफ x1 इज इक्वल टू दिस। आई होप कि क्लियर हो रहा है। चलो अभी मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म के लिए ये चेंज मैं करने वाला हूँ। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। तो जस्ट पुट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज माई सब्स्टिट्यूशन। जस्ट पुट z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो क्या चेंज होगा इंटीग्रेशन में, आप देखो dz क्या आ जाएगा, dz इक्वल टू म्यू तो कांस्टेंट है, x का आ जाएगा dx अपॉन 1 बाय सिग्मा। सारे वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, आई विल नॉट गो इन डिटेल क्योंकि ये चीज़ें कहीं पे आपको यूज नहीं करनी है, ओके। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन। सारी चीज़ें पुट करो तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू म्यू तो z इक्वल टू क्या आएगा, 0। व्हेन x इज इक्वल टू x1 z इक्वल टू क्या आएगा, z इक्वल टू आ जाएगा x1 माइनस यहाँ पे x1 है, सॉरी, x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ओके। तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की वैल्यू जो भी आएगी, आई डिनोट दैट वैल्यू बाय z1, ये आपने डिनोट किया। देयरफॉर योर न्यू लिमिट्स आर फ्रॉम नाउ 0 टू z1, ठीक है। नाउ योर न्यू लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू z1। आपको समझ में आएगा कि ये भी सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, ओके, वो एक्सप्लेन करके देन वी स्टॉप। तो यहाँ पे लिमिट्स आपके थे म्यू टू x1, अभी आपके न्यू लिमिट्स क्या आ रहे हैं, 0 टू z1। ये z1 आपने नाम दिया है बिकॉज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिनोट दिस वैल्यू बाय z1, ओके। और फिर आगे क्या चेंज होगा, dx इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dz, तो ये सिग्मा आपका कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 2, ओके, इतना ही आपका। सो दिस आर द रिमेनिंग टर्म्स, okay. So after transforming, after putting z equal to x minus mu upon sigma, this same probability can be written as integration from 0 to z1 1 upon under root of 2 pi raised to minus z square by 2 dz, ठीक है। And in this case, now what is my probability? आपको क्या कौन सा एरिया चाहिए था, म्यू टू x1 का एरिया आपको चाहिए, ओके। तो म्यू टू x1 का एरिया भी आपका चेंज होगा, बट म्यू की वैल्यू क्या है, अगर आप ये पुट करते हो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग बेनिफिट ऑफ दिस, अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो सारे कैलकुलेशन में मीन जो आपका आता है वो डायरेक्टली 0 आता है, तो आपको मीन कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, ओके। फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल आई नीड टू कैलकुलेट म्यू, क्योंकि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी तो मुझे म्यू चाहिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि चलो इस पॉइंट से, मतलब अगर म्यू मेरा 1.2 आता है तब जाके मुझे समझ में आएगा कि 1.2 से लेकर x1 तक जो भी एरिया आता है दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। बट हमेशा म्यू कैलकुलेट करना इजी नहीं होता, इसलिए मैं क्या करने वाला, आई जस्ट पुट z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। उससे क्या हो रहा है, म्यू की जगह पे हमेशा 0 आ जाएगा, मतलब इफ आई डू दिस सब्स्टिट्यूशन देन दिस इंप्लाइज म्यू इक्वल टू 0। तो ये बस मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे म्यू इक्वल टू 0 सेट करना, ठीक है। सो नाउ माई म्यू इक्वल टू 0 और x1 की जगह पे फिर अभी क्या आने वाला है, z1, है ना, कि z1 एक वेरिएबल जनरेट हो रहा है ना। आप देखो x1 था तो यहाँ पे z1 आ रहा है। सो अभी आपका एरिया क्या बन रहा है, 0 टू z1, ओके। अभी आपका क्वेश्चन क्या है, 0 टू z1 जो भी एरिया आपका आता है, कौन से कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। अभी कर्व का नेचर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म किया, मतलब ये जो भी कर्व है सेम कर्व होगी, ठीक है ना, ये सेम कर्व ही आएगी, कर्व के नेचर में कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी आप देखो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम ही है, मतलब ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो आंसर वही है, बट ये सॉल्व करने में डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि यहाँ पे म्यू चाहिए। ये सॉल्व करने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है क्योंकि म्यू क्या है, 0। तो आपको बस क्या देखना है कि 0 से लेकर, अभी 0 आपको समझ में आता है, कहीं पे भी आप 0 सेट करो। सो 0 से लेकर अभी ये क्या होगा, आपके रेगुलर एक्स एंड वाई एक्सिस और ओरिजिन पॉइंट होगा, ओके, और ऐसे आपकी कर्व आ जाएगी। सो 0 से लेकर z1 तक जो भी एरिया आता है, ओके, दैट इज योर फाइनल प्रोबेबिलिटी। So the probability which lies between 0 and z1, okay,
is actually probability of z1, but probability of z1 is exactly equal to probability of x1, क्योंकि x1 की जगह पे अभी जब आप ट्रांसफॉर्म करते हो तब x1 की जगह पे क्या आता है z1, मतलब ये एरिया 0 to z1 का एरिया एंड 0 mu to x1 का एरिया दोनों सेम ही आते हैं। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली p ऑफ z1 का कैलकुलेशन करो, वट एवर द आंसर ऑफ p ऑफ z1 दैट इज द फाइनल आंसर फॉर p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x1, करेक्ट। ठीक है, आई थिंक आई नीड टू स्टॉप हियर, ओके, वी हैव वेरी लेस टाइम। ठीक है, अप टू दिस पार्ट अगर कुछ डाउट्स है तो जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन नेक्स्ट। अभी तक एग्जैक्ट पार्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है। Okay, here see dx is sigma into dz, sigma into dz, तो ये sigma sigma कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, तो आपने दिया आंसर, ठीक है। हाँ, is there any other doubt on this part? Okay, I need one more lecture to, अभी तक हमने स्टार्ट कुछ भी नहीं किया, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, ओके। सो आई विल क्विकली एंड दिस सेशन बाय जस्ट वन स्टेटमेंट। तो आज के लेक्चर में बस आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इन व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, आपको करना क्या है, x1 को रिप्लेस करो z1 से, मतलब क्या करना है, x1 से z1 कैलकुलेट करो। z1 का फॉर्मूला क्या है, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि ये म्यू, इसमें भी म्यू चाहिए और इसमें भी सिग्मा चाहिए, ये चीज़ें आपको गिवन होगी, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, सिंपली लॉजिक क्या है, एरिया 0 से कैलकुलेट करना हमेशा सिंपल होता है, ठीक है। आपको ये आगे जाके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये जो म्यू था ये प्रीवियस केस में था, ओके। इस केस में म्यू आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म किया। आपका बस लोकेशन चेंज होगा, बट एरिया सेम होगा। मतलब स्क्वायर 2/2 का स्क्वायर आप किसी भी लोकेशन में करो उसका एरिया सेम होगा ना, तो हम बस उस स्क्वायर को ही शिफ्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो म्यू और सिग्मा आ रही है प्रीवियस केस में म्यू नॉन जीरो था, सिग्मा नॉन जीरो था, बट करंट केस में, जेड के केस में आपका म्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट का इसमें कन्फ्यूजन होगा, इसलिए सिंपली बस आप इतना याद रखो। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, अभी तक आपको मैंने मतलब इनिशियली यूर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज म्यू से लेकर x1 तक जो भी एरिया आ रहा था दैट इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बट इसके आगे अभी क्या होगा, 0 से लेकर z1 तक जो भी एरिया आता है दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, where z1 is x1 minus mu upon sigma, okay। So with this I will end this session and we'll continue this part in next lecture। आपको समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम।